Students, apart from MCQs, the brief description type question is also necessary for the academic examination, and the MCQs type question from session 2019-20, it is actually added in our syllabus, in our prospectus, but it was earlier about 1 to 2 questions probably may asked, but from session 2019-20 it will regularly asked, and it will remain continued throughout the next upcoming years. So you should have a more practice regarding MCQs type. Now apart from MCQs type, the brief description type question is also important. So without delay timing, let I begin the important question from previous year. Listen, as you can see, as you can see that there is the previous year, there is the collection of previous year question, and that previous year question I think cover almost all topics, almost all question from previous about 10 years previous, and that is related to chapter 4. That is not related to chapter 4, it is related to chapter 3, human reproduction, and it is from the previous year board question paper. The PDF I hope you have got regarding the previous year board examination, but let I introduce you a very simple manner that how can you explain it, and I hope after watching video, if you have opened the PDF file, then you can easily solve them without any problems. If you have any problems, then read back to the links of video description, and then you will find your probable solution. So without delay timing, let I aware you what are our previous year questions. The first question you can see, the question number 18, actually up to question number 17, the question was actually related to our chapter 3. That is question number 17 from 1 to 17 is related to chapter 3, but it is not from the previous year board question. And how can you recognize which one is the previous year board question? Listen carefully. If you see there is a year just in front of question, then you can easily find whatever the years and what are the importance of the question. Now without delay timing, let me begin. The first question is draw a label diagram of a cross section through a small part of seminiferous tubule of testis to show some stage of spermatogenesis. Actually, when you see the previous video lecture, that is I think video part 1 or 2 from chapter 3, then you will find the TS seminiferous tubules. वहाँ पे आपको क्या बनाना था? TS seminiferous tubules, and the TS seminiferous tubules in which many seminiferous tubules are actually held, and only one seminiferous tubules are required to draw. Then if you draw the seminiferous tubules, suppose that single seminiferous tubules, if you want to draw, suppose that this one is the single seminiferous tubules, and if you want to draw, then what happen? Then actually inside the seminiferous tubules you have to draw the germinal epithelium, and then the primordial cells, and then the several other Sertoli cells, and in them you should represent the spermatozoa. That actual diagram represent the question number 18. The question number 18 is draw a label diagram of a cross section. सो उसमें आपको करना क्या है कि आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे बना देने, इसके साइड में तमाम ये नेवरिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पार्ट हो जाएंगे. तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि उस क्वेश्चन के अंदर मतलब उसमें क्या क्या लेबल करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ. उसमें आपको दिखाना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू शो सम स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब उसमें क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था पी ट्रिपल एस. ये फार्मूला आप जीवन भर याद रखेंगे. ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में भी काम आ जाएगा और oogenesis में भी काम आ जाएगा. वीडियो आप बहुत बार देखेंगे तब जा करके आपको सब सारी चीज़ें समझ में आएगा. इसीलिए मैं बार बार चैप्टर 4 में जाने से पहले चैप्टर 3 के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना हो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो. ठीक है. और समर वेकेशन जब होमवर्क मिलेगा तो ये क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा और आप इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व कर ले जाएंगे. ठीक है. तो कैसे पीएसपी ट्रिपल एस का जो फॉर्मूला है वो कैसे इसको कवर कर रहा है उसको हमको जानना है और उसको समझना है.
ये जो PSP ट्रिपल एस का फार्मूला है इस पे आपको फोकस करना है। और एक्चुअल में ये है क्या, ये जो P है ये वर्ड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, तो oogenesis में क्या होगा, प्राइमोर्डियल सेल्स बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो। तो प्राइमोर्डियल सेल्स P रिप्रेजेंट कर रहा है। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्मेटिड्स, और oogenesis में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ootids। ठीक है, नॉट स्पर्मेटिड्स, द S रिप्रेजेंट द स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये S स्पर्मेटोगोनियम रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट स्पर्मेटोसाइट। तो ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमोर्डियल सेल्स, S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और फिर ये P आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ। अब अगर यही फार्मूला अगर oogenesis पे लगा रहे हैं तो जैसे ये प्राइमोर्डियल सेल्स है तो वहां भी पहला वर्ड जो है P ही रहेगा। ठीक है, ये क्या स्पर्मेटोजोआ, तो वहाँ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ ये लास्ट में बनता है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये oogoनियम हो जाएगा। ठीक है, पहला प्राइमोर्डियल सेल्स जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, दूसरा क्या है स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे, और ये चूंकि क्या है ये oogoनियम हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या, तीसरा क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राइमरी oocyte, यहाँ पे भी P वर्ड प्लेस करना है, प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तीसरा क्या है यहाँ पे, ये चौथा फोर्थ वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी S हो जाएगा यानी कि सेकेंडरी oocyte, और ये क्या हो जाएगा स्पर्मेटिड्स, और ये क्या हो जाएगा ootids। ठीक है, जिसको ootyte भी बोलते हैं। और ये लास्ट में क्या आ रहा है, ये स्पर्मेटोजोआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एग सेल और ओवम। तो ये फॉर्मूला आपका इसी के बेस पे है, ये आपको लर्न नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या फिर पॉप्सू करके इसको आप लर्न कर सकते हैं। पॉप्सू बार बार आप इसको लिखेंगे पॉप्सू तो आप समझ पाएंगे कि पॉप्सू का फार्मूला किसके लिए। ठीक है, तो ये PSP ट्रिपल एस क्या है, प्राइमोर्डियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ। ऐसे ही इसमें भी यही फार्मूला लगा करके इसको पढ़ डालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18। नाउ बैक टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is related to, listen, question number 19 is draw a label diagram of a sectional view of human ovary showing various stage of follicles growing in it. अब आपको क्या बताया गया था, अब आपको बताया गया था TS, listen, TS ओवरी बताया गया था, जिसमें आपको यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट पे, यहाँ पे थोड़े से सेंटर वाले पार्ट पे ये जो पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स रीजन था, और ये सब क्या था मेडुला रीजन था। ठीक है, और आपको उसके अंदर क्या क्या भरना था, उसके अंदर यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या भरना था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके बाद यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल्स दिखाने के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखाने के बाद आप उसके साइड में यहाँ पे ओवुलेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस, यहाँ पे चाहे तो ब्लड वेसल्स दिखा सकते हैं। ये सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, इसका भी आपको वीडियो मिला होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई साल पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये आपको सेक्शनल व्यू ओवरी का दिखा करके क्या दिखाना है, ये आपको दिखाना है oogenesis। ठीक है, oogenesis में आपको डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज दिखा देना है, क्योंकि oogenesis ओवरी के बाहर भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस आपको TS सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के थ्रू दिखा देना। नाउ बैक टू क्वेश्चन नंबर 20, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू जस्टिफाई, ये आपको प्रीवियस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। प्लेसेंटा सीक्रेट मैनी काइंड्स ऑफ एंजाइम, मैनी काइंड्स ऑफ हार्मोन लाइक द CRH। ठीक है, CRH। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, इसके अलावा आपको क्या मिला होगा, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो प्लेसेंटा से डायरेक्टली सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, रिलैक्सिन हुआ, ये सब आपको जानना है और समझना है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब निकलता रहता है प्लेसेंटा से, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन टिश्यू। इसको मैंने उस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। 21 क्या, मेंशन द फेट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम का जो फेट है वो क्या है, कार्पस एल्बिकेंस, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द यूटेरस। अब इस कार्पस ल्यूटियम का इफेक्ट पूछ रहा है, न कि कार्पस ल्यूटियम के फेट का इफेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन
दैट मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूटेरस इन अब्सेंस ऑफ, अब पूछ रहा है क्या, इट्स इफेक्ट ऑन यूटेरस इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी द ओवम इन द ह्यूमन फीमेल, यानी कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कार्पस ल्यूटियम का इफेक्ट, देन द कार्पस ल्यूटियम स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड द endometrium thick endometrium lining over the uterus get fall down, that phenomenon is known as menstruation। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 21 ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आपका कवर हो गया। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखेंगे तभी जाकर के आपकी चीज़ें कवर हो पाएंगी, तभी जाकर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल इज अ हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, इस जस्टिफाई के लिए पूछ रहा, हार्मोन रेगुलेटेड तो आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वीडियो मिला होगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें क्या दिखना है, उसमें आपको चाहे तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको क्या शुरू करना है, फ्लो चार्ट आपको हाइपोथैलेमस से शुरू करना है, पिट्यूटरी से शुरू करना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से शुरू करना है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट द GnRH stimulate the adenohypophysis of pituitary in order to secrete the gonadotropin, LH and FSH। LH stimulate the Leydig cell in order to secrete the androgen or testosterone, and FSH stimulate the Sertoli cell in order to nourish and maturation of sperm। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। आई थिंक इसको आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 10th में भी प्रैक्टिस किए हैं और 12 में भी वीडियो इसका मिला होगा। नेम द हार्मोन्स, 24 पे आते हैं। नेम द हार्मोन्स प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। लास्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको बताया गया होगा, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कहाँ से सीक्रेट होते हैं, वो सिर्फ जो है प्रेगनेंसी के टाइम। फॉर एग्जांपल HCG, HPL, रिलैक्सिन, that is only secreted from the ovary, that is only secreted during the pregnancy। so HCl आपको ये जानना है कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, रिलैक्सिन, ये सब कौन से हार्मोन्स है, ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और क्या क्या सीक्रेट होते हैं प्लेसेंटा से, क्वेश्चन भी था, व्हाई प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यूज, तो वो उसमें आपको ये तीनों कवर भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, बट वो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं, से उससे पहले भी सीक्रेट होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम भी सीक्रेट होते हैं। दैट इज द बेसिक की दैट यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटेशन एंड द रोल ऑफ प्लेसेंटा। नाउ बैक टू द क्वेश्चन नंबर 25। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें CBSE 2011 में पूछा गया था, उसका सोर्स भी पूछा है। ठीक है, तो आप सोर्स भी उसको लिख लीजिएगा। HCG, HPL that is secreted from the placenta, but relaxin also secreted from the ovary। Now back to the next important question, the question number 25। What is question number 25? Listen, actually the question number 25 is related to the CBSE 2012। Where do the signals of parturition originate in humans? Signals of parturition कहाँ शुरू होता है? That is fetus itself। Fetus itself begin the signals of parturition। ठीक है, तो लिखेंगे fetus itself begin to the parturition। ठीक है, begin the signals of parturition, इसको आप कर लेंगे, प्रीवियस वीडियो में ही आपको कवर हो गया है। Why is it important to feed the newborn babies on colostrum? आपको एक कॉन्सेप्ट करके मिला होगा, कोलोस्ट्रम एक्ट एज बून फॉर बेबी। यस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। कोलोस्ट्रम हैज मैनी काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्रोथ ऑफ बेबी। ठीक है, मैनी काइंड्स मीन्स सिंगल काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी एंड मैनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दैट इज हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी। कोलोस्ट्रम का डायरेक्ट डिफिनीशन भी कभी कभी पूछ लेता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, द येलो कलर अर्ली मिल्क रिलीज बाय द मदर्स इन ऑर्डर टू फीड द बेबी। ये 2012 का, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्टार लगा लीजिएगा, ये कई साल पूछ चुका है और ये पूछ देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। राइट द फंक्शन ऑफ, लिसन, पहला ओविड्यूकल फिम्बरी, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन इनफ है। पहला क्या है, ओविड्यूकल फिम्बरी, इसका काम क्या है, दैट हेल्प टू ट्रैप द ओवा
दैट हेल्प टू ट्रैप द ओवा एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो ये ओवा को ट्रैप करने के काम आता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बहुत आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आप पढ़े होंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द pregnancy, that is during the female reproductive system? At the time of parturition, oxytocin is required hormones that is responsible for the delivery and that is responsible for the contraction of myometrium of uterus। तो इसको आप कर लेंगे। मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइड एनर्जी। सेमिनल वेसिकल्स हेल्प टू एड द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब आते हैं एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन हेल्प टू ब्रेक द जोना पेलोसिटा ऑफ एग सेल्स, ठीक है। ये आपका तीनों हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 27 पे। When and where chorionic villi appear in human? At the time of placentation, the chorionic villi appear in human। इसके फुल डिटेल आपको मिला होगा। State their function, it help to attach and make the uterus suited for the implantation। ये आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये 2013 में पूछा गया। चलो आते हैं 28 क्या है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबल द पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शन, इसमें क्या क्या लेबल करना है, देखो कंडीशन आपको एग्जाम में दे दें तो ऐसे आप डायग्राम स्पर्म का बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसमें जैसे आप पार्टिकुलर, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है एक्रोसोम को मस्ट है लेबल करना, लेकिन आप यहाँ पे कहीं भी टेल नहीं दिया है, देखो कहीं भी टेल नहीं दिया, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और मिडिल पीस दिया है, तो टेल को लेबल कर लेंगे, लेकिन आप उसका नंबरिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं अपने मन से चलो इसको अब डी कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। आपको ये पूछ रहा है एक्रोसोम, तो आपको मालूम है कि ए यहाँ पे भरा जाएगा एक्रोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एकदम सेंटर में होता है यहाँ पे, ये बी आपका हो गया। और सी क्या है, मिडिल पीस यहाँ कहीं होगा, तो ये आपका सी हो गया। ये डी आपको क्या करना है, ये नहीं भरना है, ठीक, लेकिन आप टेल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हेड, नेक और टेल 3 पार्ट हो गए। और इसका कभी कभी फंक्शन भी पूछ देता है, यहाँ पे इसी में भी पूछा गया, राइट देयर फंक्शन। तो हेड क्या करता है, इट हेल्प टू ब्रेक द जोना पेलोसिटा बिकॉज ऑफ हैविंग एन एंजाइम हाइएलुरोनिडेज। और बी क्या करता है, बी कंसिस्ट द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट रिस्पांसिबल फॉर द फ्यूजन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंगेमी। और मिडिल पीस कंसिस्ट द माइटोकॉन्ड्रियल लाइन दैट हेल्प टू द मूवमेंट दैट हेल्प टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा और 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 पे। इसको थोड़ा सा एक्चुअल में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे 29 ऑनवर्ड क्वेश्चन।